Hello students, welcome back to Tuition Masters, and today we are here with grade 9 chemistry one short theory session for the chapter structure of the atom. So basically this is a four chapter last chapter है chemistry का for your grade 9. इससे पहले we have atoms and molecules also, but I thought that it's more important to do structure of atom first so that your atoms and molecules थोड़ा और easy हो जाएगा. So let's study about structure of atom today in one short session. Then I'll come up with the atoms and molecules also. Okay, so this is a one short session, little bit lengthy hoga, but we are going to cover all the topics, okay, along with very easy explanation. All right, so क्या क्या आज हम पढ़ने वाले हैं. फर्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट हाउ द सब एटॉमिक पार्टिकल्स वर डिस्कवर्ड. देन वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट तीन लोगों ने अपने एटॉमिक मॉडल्स दिए थे, थॉमसन, रुथरफोर्ड और बोहर. इन तीनों के हम लोग मॉडल्स पढ़ेंगे. Then we are going to study about the shells, valency, atomic number, atomic mass, and the last topic is isotopes and isobars. ये पूरे टॉपिक्स आज के सेशन में we are going to cover. So make sure just stay tuned till the end of the video so that you can clear all your doubts here. Okay. So let's start with the discovery of subatomic particles. अब subatomic particles हो गए जो atom के अंदर है. But I said a word atom. What is atom? Atom is nothing but सबसे smallest particle. ठीक है, सबसे smallest particle of anything, any matter is a atom. If this is a object, okay, this is a object, क्या है वो matter है, correct? It does matter. अब ये matter के अंदर tiny particles होते हैं. इन tiny particles बहुत, in millions and trillions there are particles, and these particles we call them as atoms. What we call them? Atoms. Okay. अब atoms बहुत ही smallest particle होते हैं एकदम. we cannot even see them with the naked eye. We need very advanced microscopes to see, right? तो एक साइंटिस्ट है जॉन डाल्टन. ओके, उन्होंने कुछ हमको थ्योरीज दी थी, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, जो हम थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में. तो उन्होंने कहा था कि एटम्स आर इनडिविजिबल. हम उनके अंदर और कुछ नहीं है, एटम्स बस एटम्स सबसे स्मॉलेस्ट है, उसके फर्दर हम डिवाइड नहीं कर सकते. But later on, there were many scientists who discovered that there are some subatomic particles. मतलब ऐसे भी कुछ particles हैं जो atom से भी छोटे हैं और वो atoms के अंदर होते हैं. That was the subatomic particles. So basically डाल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी थी उसमें से बहुत सारी थ्योरीज थी, पर उन्होंने एक थ्योरी में था कि एटम्स आर इनडिविजिबल. ओके, ये उनकी थ्योरी थी. बट बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के बाद वी गॉट टू नो दैट इज रॉन्ग. Atoms actually have three subatomic particles. What are they? Electrons, protons and neutrons. अब ये क्या है? What are these? Electrons, protons, neutrons, what are these? ये है nothing but charges. They are charges present in an atom. एक atom में जो charge होता है ना, that are electron, proton, neutron, वो weight भी देते हैं और अलग अलग उनके फंक्शन होता है in an atom that we are going to study throughout the chapter. Structure of atom. Why structure of atom? Because these three only atom को बनाते हैं अंदर से, right? Electron, proton and neutrons. Electrons, proton, neutron, किन किन साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया और कैसे किया, that we have to study now. So you have the same chapter in your 11th grade also. If you take science, you will have 11th maybe, you have the same chapter structure of atom. और उसमें क्या चेंज है, आपकी ये जो सारी डिस्कवरीज है ना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैसे डिस्कवर, वो एकदम डिटेल्ड वर्जन है. इधर क्या है, वी आर जस्ट गोइंग टू क्विकली डू अ वेरी लाइक ऊपर से वी आर गोइंग टू learn about it. In detail you'll study in 11th. Okay, so let's come towards electrons. So electrons were discovered by J.J. Thomson. He even gave the atomic model. So J.J. Thomson ने discover किए थे electrons. How? By the cathode ray experiment. तो आपको क्या याद रखना है? In subatomic particles you have to first remember the scientist name कि इन्होंने discover किया, and second कैसे डिस्कवर किया, द मेथड ऑफ डिस्कवरी ऑल्सो यू हैव टू मेंशन. ओके, सो what happened was there was a scientist, okay, उनका नाम था जे थॉमसन. तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था.
क्या एक्सपेरिमेंट था? कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिससे उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कवर किया। हाउ? लुक एट दिस इमेज। ना आई डोंट वांट टू गो इन डिटेल में जाने का कोई यूज नहीं, क्योंकि इसमें से आपको क्वेश्चन उठेंगे कैथोड रे को एक्सप्लेन करो, ये करो। नो, दे विल आस्क यू सिंपल क्वेश्चन ओनली। दे विल आस्क कैसे, कौन सा एक्सपेरिमेंट था, लिटिल बिट। ओके, सो नो दिस। ही टुक अ डिस्चार्ज ट्यूब। ओके, उन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब ले लिया था। ऑलराइट, सो ही यूज अ डिस्चार्ज ट्यूब। ठीक है, ऐसा एक ट्यूब होता है, डिस्चार्ज ट्यूब, वो लिया। उन्होंने क्या किया, इन दैट ट्यूब ही रिड्यूस द प्रेशर। जो प्रेशर होता है ना उसको लो कर दिया। ठीक है, और वो ग्लास का बना तो प्रेशर एकदम कम कर दिया, टेम्परेचर हाई कर दिया। नाउ एंड्स में, उन्होंने वायर्स कनेक्ट की कैथोड और एनोड पे, टू इलेक्ट्रोड्स कनेक्ट कर दिए, करेक्ट, और वेरी हाई वोल्टेज दिया। वोल्टेज जो है, टेम्परेचर सॉरी, वोल्टेज जो है एकदम हाई कर दिया। वोल्टेज है, प्रेशर कम। ठीक है, और द इलेक्ट्रोड, ओके, इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द नेगेटिव एंड, जो नेगेटिव साइड पे था वो था कैथोड, और जो पॉजिटिव साइड पे था दैट वाज द एनोड। Okay, now what happened when the battery was on? We were able to see that there was a beam of negatively charged particle. ये जो light ray दिख रही है ना, that was the cathode rays which have negative particles. Okay, and these particles were known as electrons. क्या था ये? These were known as electrons. So ऐसे discover, you will study very very detailed thing. उन्होंने एनोड पे जिंक सल्फाइड का लगाया था, उन्होंने क्या डिटेल में उसके, that will study in 11, not right now. ठीक है, so important thing, what is the charge present in an electron? We have to study that. That's important. So first one, what is the charge on an electron? Charge, every electron has some charge, right? So it is minus 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb. All right, it is, okay, I don't have space over here. It, yeah, it is charge is 1 minus 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb. Okay, that is the charge. Okay, and so this is the, it is very 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 small, the charge is so small ना, अभी आपको calculation में तो use नहीं कर सकते, so that is why we consider it as -1. बस -1 ले लेते कि -1 है नेगेटिव में. Now what is the mass of the electron? Electron का mass is 9.1 into 10 to the power 31 kg. Correct? No. 31 kg तो कितना बड़ा हो गया? It is minus 31 kg. Okay. Why minus 31? Because it is very 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 small. So that's why we're writing it in negative. ठीक है? तो this is about the electrons. Next come protons. अब protons जो होते हैं वो है positively charged particles. क्या है? Positively charged particles. किन्होंने डिस्कवर किया? ई गोल्डस्टीन. ई गोल्डस्टीन ने यूज किया कैनाल रे एक्सपेरिमेंट से. इन्होंने कौन सा किया था? कैथोड रे एक्सपेरिमेंट. इन्होंने किया कैनाल रे एक्सपेरिमेंट. द स्ट्रक्चर, ओके, द स्ट्रक्चर, द apparatus which they took, वो दोनों का सेम था. बोथ ऑफ द स्ट्रक्चर्स वर सेम. The thing was, Eugene Goldstein had used a perforated plate. He used a perforated ray, and these canal rays are also known as the anode rays. What are they known as? Anode rays. The same way. How? The same way कि एकदम लेस प्रेशर, हाई वोल्टेज, उससे फिर पार्टिकल्स निकले, तो अब जो पार्टिकल्स है दे वर फ्रॉम दी एनोड, तो उनको एनोड रेस कहते हैं. दे वर गोइंग थ्रू द दैट थिंग, थ्रू द anode they were going, and they had a positive charge on them, so that is why they came to be known as protons. Okay, so ज्यादा आपको डिटेल में पढ़ना नहीं, जस्ट रिमेंबर इन्होंने कैनाल रे एक्सपेरिमेंट किया जिसको एनोड रेस भी कहते हैं. ओके, what about mass? Again, protons we write it as p plus. Okay, so उनका जो charge है, first of all charge, again उसकी specific value is not needed. It is 1.6 into 10 raised to minus 19 charge है, पर you we write it as +1. For you guys you have to write it at +1. Okay, and what is the mass of proton? Mass of proton is nothing but 1.6 into 10 raised to minus 27 kg minus. Okay, always remember and minus. और ये
2000 टाइम्स ये इलेक्ट्रॉन से बड़े होते हैं. सो प्रोटॉन्स आर लार्जर देन इलेक्ट्रॉन्स. ओके, और उनका जो चार्ज है वो पॉजिटिव होता है. ओके, सो प्रोटॉन्स आर बिगर देन इलेक्ट्रॉन्स. अब लास्ट आते हैं न्यूट्रॉन्स पे. Now, neutrons it were discovered very 1900s. 1900s में discover हुए थे neutrons. Very late it was discovered. What happened was here it was by James Chadwick. इतना important ये neutrons है क्योंकि mostly questions आते हैं electron और proton से. Okay, so neutrons it was discovered by James Chadwick. How? उन्होंने एक alpha source लिया था, ठीक है, एक बेरिलियम स्क्रीन ली थी, पैराफिन वैक्स का लिया था, और ये जो बाकी के जो रेज एमिट हुए थे, द रेज व्हिच केम आउट, दोज आर नोन एज द प्रोटॉन. ओके, इन दैट रे प्रोटॉन वाज फाउंड आउट. तो उन्होंने ऐसे ही बेरिलियम पे अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्डिंग कर दिया, मतलब रिफ्लेक्ट किया था, एंड विद दैट दे फाउंड द प्रोटॉन्स. हु फाउंडेड? जेम्स चैडविक. अगेन डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन need not need. Okay, now with that we understood in like 10 minutes what is the exact meaning of subatomic particles and all. Okay, if you want a clear date I can give you that it was actually discovered in 1932. So you can understand एकदम बहुत बहुत लेट हुए थे, right? So न्यूट्रॉन्स को हम लिखते हैं N0. वाई? क्योंकि इनका जो चार्ज होता है दैट इज न्यूट्रल. इट हैज अ न्यूट्रल चार्ज. उनका कोई चार्ज नहीं था, न्यूट्रल है वो, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव. ओके, नाउ विद दिस लेट्स मूव टुवर्ड्स द सेकंड टॉपिक ऑफ द डे दैट इज थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल. अब हमको पता चल गया एटम कैसे थे, करेक्ट. साइंटिस्ट को मिल गया कि अच्छा एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये सब होते हैं. तो डिफरेंट साइंटिस्ट ने दिया एटॉमिक मॉडल उनके पॉइंट ऑफ व्यू से. जो जो एटॉमिक मॉडल बने उनको लगा कि एटम्स ऐसे होंगे वैसे होंगे, वो उन्होंने दिया. उनमें से टॉप 3 रैंकर्स जो थे, टॉप 3 अचीवर्स थे थॉमसन, रुदरफोर्ड एंड बोहर. तो हम उनके एटॉमिक मॉडल्स पढ़ने वाले हैं. सो फर्स्ट वन है थॉमसन. नाउ थॉमसन ने क्या कहा, उनके मॉडल को हम बोलते हैं प्लम पुडिंग मॉडल, क्रिसमस पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं उनको. व्हाई? बिकॉज उन्होंने कहा कि क्रिसमस पुडिंग कैसी होती है. एक ऐसा एक सर्कुलर सा पुडिंग है, करेक्ट, दिस इज अ सर्कुलर पुडिंग, ठीक है, एक स्फीयर जैसा, और उसके अंदर टाइनी टाइनी प्लम्स है, वॉट एवर करंट्स है, जो भी है ना, होते हैं ना ड्राई फ्रूट जैसे, है ना. तो उन्होंने कहा कि ये जो पॉजिटिव, ये जो स्फीयर है, जो प्लम है, वो पॉजिटिव है, that is positive in nature, and these plums or the currents, the dry fruits which are there, they are negative in nature. और उन्होंने कहा that atoms also have the same structure. उन्होंने एटम का क्या स्ट्रक्चर दिया? उन्होंने बोला एटम्स ऐसे दिखते हैं, एक पॉजिटिव स्फीयर है, ये दिस इज फुल्ली पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है, और अंदर छोटे छोटे नेगेटिव चार्जेस है. उन्होंने ये बताया. Okay, he said that there is one spherical, there is one sphere which has only and only positive charge, and in that sphere we have the negatively charged electrons. ठीक है, तो उन्होंने क्या क्या कहा, that हम इसको वाटरमेलन जैसा भी कर सकते हैं, क्रिसमस पुडिंग मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल, वाटरमेलन मॉडल, ये सब कहा जाता है. ओके, सो उन्होंने क्या कहा था कि फर्स्ट साइंटिस्ट जिन्होंने दिया था स्ट्रक्चर ऑफ एटम. ओके, सो पॉजिटिव चार्ज जो है एटम में हर जगह फैला हुआ है, इट इज स्प्रेड ऑल ओवर द एटम. ओके, एंड इलेक्ट्रॉन जो है वो स्टडेड है, उसमें एम्बेडेड है, किसमें? स्फीयर में एम्बेडेड है. सो दैट वाज द थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल. अब उन्होंने पोस्टुलेट्स क्या दिए, यू हैव टू स्टडी ना, उन्होंने कुछ थ्योरी कुछ तो दी होगी ना. सो लेट्स स्टडी. फर्स्ट वन, उन्होंने कहा कि एन एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट. तो उन्होंने क्या, एक स्फीयर जैसा कुछ होता है, ठीक है, ये पूरा का पूरा जो है पॉजिटिव है, बट उनके अंदर जो है नेगेटिव चार्जेस होते हैं. उनका फर्स्ट पोस्टुलेट ये था, there is one positive sphere in that there are negatively charged electrons present. First, next उन्होंने कहा negative and positive charges are equal in magnitude, so the atom as a whole is electrically neutral. Important point. Why important point? Because उन्होंने कहा कि फर्स्ट देखो,
If I give you +1 +1 -1, okay, +1 - 1 करोगे तो what answer will get? 0, correct. So उन्होंने कहा, Thomson said that एक atom में how much protons are there and electrons are there, they both are equal. ठीक है, so the positive charges, negative charges, they all get cancelled and atom is neutral. एटम डज नॉट हैव एनी चार्ज, उनका उसका कोई खुद का चार्ज नहीं होता, इट इज टोटली न्यूट्रल इन नेचर. पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, सारे कट होते हैं और न्यूट्रल हो जाते हैं. इफ आई गिव यू +1 -1, दैट्स व्हाट आई सेड यू, +1 -1 एक जीरो हो गया, जीरो इज व्हाट, न्यूट्रल. सो अगर उधर दो प्रोटॉन्स थे तो दो इलेक्ट्रॉन्स भी थे, सो दैट गिव मी न्यूट्रॉन. आई मीन न्यूट्रॉन नहीं दिया, मतलब पूरा जो है उसमें एटम, it does not, it's not positive, it's not negative, it is neutral. That is what Thomson said. Okay, Thomson ने ये बताया था. अब हर किसी के मॉडल्स में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम या लिमिटेशंस होते हैं. सो व्हाट वाज द लिमिटेशन ऑफ थॉमसन? जो दूसरे साइंटिस्ट थे, ओके, जे थॉमसन मॉडल, अदर साइंटिस्ट कुड नॉट एक्सप्लेन दैट इट इज न्यूट्रल. उन्होंने दूसरे साइंटिस्ट भी रिव्यू करते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू आर डूइंग अ ग्रुप वर्क, ओके, तो ग्रुप वर्क में चलो आप इंडिविजुअल वर्क कर रहे हो, अगर इफ यू डिड वन वर्क यू विल द अदर्स विल चेक योर वर्क, राइट, हाउ डिड यू डू, शो अस आल्सो इफ इट्स राइट और रॉन्ग, है ना, दूसरे भी चेक करते हैं ना. तो सिमिलरली थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल, इवन अदर साइंटिस्ट यूज्ड इट, बट अदर साइंटिस्ट ने हमको तो पता ही नहीं चल रहा है ये न्यूट्रल है, वी कैन नॉट फिगर दैट हाउ इट इज न्यूट्रल, आपने कैसे बता दिया. सो दैट इज व्हाई उन्होंने ये भी नहीं बताया दैट इज न्यूक्लियस. रदरफोर्ड में हम रदरफोर्ड नेक्स्ट जो है उसमें हम पढ़ेंगे कि उसमें न्यूक्लियस होता है, वो भी नहीं बताया उन्होंने, करेक्ट. एंड इट कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी भी हमको नहीं पता चली थी बाय थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल. सो ये थे कुछ उनके डीमेरिट्स, ओके, कुछ लिमिटेशंस थे. उनका मॉडल तो उन्होंने बताया था पर बहुत बेसिक था. सो नेक्स्ट आए हमारे एर्नेस्ट रदरफोर्ड. तो रदरफोर्ड ने एक नया दिया, उन्होंने बोला अच्छा ठीक है आपका भी ठीक ठीक है पर मैं अभी नया दूंगा. सो रदरफोर्ड गेव अ न्यू एटॉमिक मॉडल. हाउ his atomic model is a little bit complex. उन्होंने कैसे ढूंढा, let's understand that first. So basically उन्होंने कैसा एक्सपेरिमेंट बनाया था जिसमें उनको पता लगाना था कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे अरेंज्ड है, उनको पता लगाना था how are electrons arranged. So what did he do? He bombarded फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स. ये अल्फा पार्टिकल्स है, राइट, ऐसे अल्फा पार्टिकल्स को उन्होंने बम्बार्ड किया एक सोर्स से. किस में बम्बार्ड किया? He bombarded the alpha particles on a very thin gold foil. ये कैन यू सी there's a gold foil. उस गोल्ड फॉइल पे, ठीक है, उस गोल्ड फॉइल पे उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड किया, उसके ऊपर रिफ्लेक्ट किया कि ये उनको जाके उनके ऊपर बम्बार्डिंग की किसकी अल्फा सोर्स की ऑन द गोल्ड फॉइल. ओके, नाउ गोल्ड फॉइल वाज वेरी वेरी थिन, ओके, and it was why it was thin because it was made up of 1000 atoms. उन्होंने ऐसी गोल्ड शीट ली जो सिर्फ 1000 एटम से ही बनी हो. हाउ मेनी? 1000 एटम्स. ओके, सो जब उन्होंने किया, जब अल्फा सोर्स को उन्होंने रिफ्लेक्ट किया, बम्बार्ड किया ऑन द गोल्ड फॉइल, ही ऑब्जर्व सम थिंग्स. व्हाट वर हिज ऑब्जर्वेशंस? फर्स्ट वन, द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल. जो एकदम फास्ट थे, ठीक है, ये गोल्ड फॉइल है तो एकदम फास्ट जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो इजीली पास थ्रू हो गए. ओके, इजीली वो सीधा बीच में से निकल गए. बट जो सम अल्फा पार्टिकल्स जो इतने फास्ट नहीं थे वो डिफ्लेक्ट हो गए वेरी लेस एंगल में से. फॉर एग्जांपल ये अगर गोल्ड फॉइल से स्मैश वो ऐसे गए ओ, पर वो स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए, ठीक है. सो कोई कोई अल्फा पार्टिकल्स दे वेंट थ्रू द गोल्ड फॉइल बट सम ऑफ देम वर डिफ्लेक्टेड, बट एकदम लेस एंगल से, अक्यूट एंगल्स में से. ओके, now very few particles, that is 1 out of every 12,000, हर 12,000 पार्टिकल में से एक पार्टिकल रिबाउंड हो गया.
ओके, इट वाज रिबाउंड। तो ये तो हमको कुछ एटम का स्ट्रक्चर बताता नहीं है, राइट? तो हाउ डिड ही गिव द स्ट्रक्चर? तो व्हाट हैपेंड इज, ये बस उनका एक्सपेरिमेंट था, जिसको हम इवन कहते हैं गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। व्हाट डू वी से इट एज गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। क्या हम उनको बोलते हैं? गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट, क्योंकि उन्होंने गोल्ड फॉयल लिया था। दैट इज द मेन पार्ट। ओके, नाउ अब जैसे उनका ये हो गया, उन्होंने बना दिया ये, ही गेव सम व्हाट डू वी से, ही उन्होंने बताया कि कुछ उन्होंने ऑब्जर्वेशन से उन्होंने पोस्टुलेट्स दिया। ओके, उन्होंने कहा कि फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने क्या किया, जो गोल्ड एटम्स थे ना, ये गोल्ड एटम्स है, दीज आर माय गोल्ड एटम्स है विद न्यूक्लियस इन द मिडल। कोई कोई अल्फा रेस सीधे चले गए, कोई कोई रिफ्लेक्ट हो गए, कोई कोई रीबाउंड हो गए, ऐसे। ठीक है, तो व्हाट ही सेड वाज मोस्ट ऑफ द स्पेस एटम के अंदर एम्प्टी होती है। क्यों एम्प्टी होती है? क्योंकि इफ यू सी इट वाज मेड अप ऑफ 1000 एटम, 1000 एटम से बना। तो उन्होंने बोला एकदम उस उनमें बहुत स्पेस होती है, इसलिए तो लाइट रेस आराम से जा पाती है। ओके, एंड बहुत कम डिफ्लेक्ट हो गई थी। नाउ जो particles which were deflected from the path, they were the positive charges are bigger, so वो जो थे वो ज्यादा क्वांटिटी में थे, that's why they reflected, and very small fraction of alpha particles were deflected by 180 degree, means उन्होंने rebound किया था। why? Because of the negative charges in the एटम। ओके, तो ही उन्होंने ये बताया, और फिर उन्होंने एटम के पोस्टुलेट दिए कि एटम एक्चुअली में फिर अभी होगा कैसे। ही सेड दैट फर्स्ट देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज सेंटर इन एन एटम कॉल्ड द न्यूक्लियस। थॉमसन ने क्या बताया था, ये एक स्फीयर होता है, वो ही पॉजिटिव और अंदर नेगेटिव चार्जेस है, only that much. But he said that there is a nucleus in the atom that is positively charged. So he said that the nucleus is positive in the middle, and all the mass, जो मेजर मास है, पूरा का पूरा मास इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ओनली। पूरे एटम का जितना भी मास है दैट इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स के वेरी नेग्लिजिबल मास होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट उन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, वो सर्कुलर पाथ्स में, ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। थॉमसन ने क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो है एम्बेडेड है, उसमें चिपके हुए हैं, राइट? सो दैट वाज प्रूवन रॉन्ग। उन्होंने बोला कि ऐसे ऑर्बिट्स होते हैं, दिस इज द न्यूक्लियस, सो उसमें ऐसे 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 ऑर्बिट्स होंगे, और उन ऑर्बिट्स में एटम्स होंगे जो रिवॉल्व करेंगे। और नेक्स्ट ही सेड दैट द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ एटम। ठीक है, जो न्यूक्लियस का साइज है वो बहुत बहुत कम है। हाउ? उन्होंने बोला साइज ऑफ न्यूक्लियस 10⁻⁻15 और एटम का है 10⁻⁻10। तो यू कैन अंडरस्टैंड न्यूक्लियस का साइज इज बहुत कम कंपेयर टू साइज ऑफ एटम। ठीक है, सो दैट इज व्हाई वी गॉट टू नो अबाउट रुथरफोर्ड्स। ओके, अब उनका क्या प्रॉब्लम था, उनमें क्या लिमिटेशन थे। नाउ एटम्स बहुत स्टेबल होते हैं, एटम्स आर वेरी स्टेबल, बट वो जब रिवॉल्व करेंगे, ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करें, उन्होंने बोला कि ये है, तो ऐसे ऐसे ऐसे, इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है वो रिवॉल्व करेंगे इन द ऑर्बिट्स, क्या होगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, बिकॉज दे आर इन मोशन, राइट? दे आर इन मोशन, से एक्सेलरेशन होगा और एनर्जी प्रोड्यूस होगी, और वैसा हुआ तो जो सारे के सारे इट वुड फॉल इन द न्यूक्लियस, वो न्यूक्लियस में गिर जाएंगे और एटम्स अनस्टेबल हो जाएंगे। सो what happened was we could not explain कि जो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हम उनको कहाँ पे डालें। सो दैट इज वाई ही कुडंट प्रूव दैट एटम स्टेबल है कि नहीं, क्योंकि अगर वो ऑर्बिट्स में घूम रहे तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेंगे तो वो अनस्टेबल हो जाएगा। सो दैट वाज द लिमिटेशन ऑफ रुथरफोर्ड। नाउ एट द एंड पूरी मूवी के हीरो बन के आते हैं बोहर। So Bohr, his full name was Niels Bohr. He gave the
his atomic model which we even use it till date. So बोहर का जो atomic model था वो जो universally accept किया था, universally it was accepted by everyone because he gave the very accurate one. So in order to overcome the drawback of Rutherford's model, Rutherford का मॉडल था ना कि उसमें everything was perfect, but the thing was कि we cannot identify कि वो stable है कि unstable. So to overcome that, Niels Bohr he gave his atomic model in 1915. 1915 में उन्होंने अपना मॉडल दिया. What he said that postulates, क्या postulates दिया उन्होंने? उन्होंने बोला कि एक ऑर्बिट्स होते हैं, ठीक है, न्यूक्लियस में ओके सॉरी एटम में कुछ ऑर्बिट्स होते हैं जिनको वी कॉल इट एज डिस्क्रीट ऑर्बिट्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द एटम, ठीक है. सो एक न्यूक्लियस होता है पहले और अराउंड द न्यूक्लियस देयर आर सम ऑर्बिट्स. ओके, देयर आर सम ऑर्बिट्स जिनको हम बोलते हैं डिस्क्रीट ऑर्बिट्स. ओके, उन्होंने बोला कि ये है ऑर्बिट्स होते हैं. ओके, नाउ ईच ऑफ दिस ऑर्बिट्स उनको हम शेल्स भी बोलते हैं, एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं. सो दीज डिस्क्रीट ऑर्बिट्स आर 4 ऑर्बिट्स के एल एम एन. वाई के एल एम एन? कोई और ABCD क्यों नहीं लिया? नाउ दैट थिंग इट्स नॉट एक्चुअली नीडेड राइट नाउ. यू विल स्टडी इन योर 11th grade that क्यों नहीं. if you can do a research. Okay, I'll give you a homework now. Do a research on this and write it in the comment section. Write in the comment section कि ये जो shells है, ओके, बोहर के जो उन्होंने बताया कि शेल को KLMN क्यों बोलते हैं. व्हाई आर द सिंबल्स KLMN? कोई और ABCD क्यों नहीं लिया, XYZW क्यों नहीं लिया, व्हाई KLMN ओनली? So try to find out, do some research work, okay, and try to, and you can ask your teachers, your friends, colleagues also, and try to let me know and write it in the comment section. I want to see who gives the right answer. Okay, so तो उन्होंने बोला शेल्स होते हैं एटम में, न्यूक्लियस और उसके लाइक अराउंड 4 शेल्स होते हैं KLMN. ओके, उन्होंने बोला ये 4 शेल्स होते हैं. नाउ अहेड विल अंडरस्टैंड देम इन डिटेल. नाउ and each energy level it is associated with a fixed amount. एक लेवल में फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रेजेंट, ठीक है. तो फर्स्ट वाले में एकदम फर्स्ट, दिस इज के, दिस इज एल, दिस इज एम. सो के वाले में जो सबसे पहला वाला दैट विल हैव द लोअर एनर्जी, सबसे कम एनर्जी. देन एल में थोड़ी ज्यादा, फिर एम में ज्यादा और एन में सबसे हाईएस्ट एनर्जी होगी. तो हर लेवल इट हैज इट्स ओन अमाउंट ऑफ एनर्जी. ओके, नाउ अभी फर्स्ट ऑफ ऑल द मेन प्रॉब्लम क्या थी रुथरफोर्ड की? उन्होंने बताया कि एटम्स घूमते, एक्सेलरेशन होगा तो एनर्जी प्रोड्यूस होगी. पर उन्होंने कैसे ओवरकम किया? ही सेड दैट देयर इज नो चेंज इन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स revolving in the same energy level, hence they do not radiate any energy. उन्होंने कहा that atoms have the same energy, उनकी एनर्जी तो चेंज नहीं हो रही और वो सेम लेवल में. if this is my electron it will travel only in K only, to नहीं इधर जाके वो M में चला गया, L में चला गया, नो, इट विल स्टे इन K ओनली. तो कोई एनर्जी रेडिएट नहीं होगी. सो दैट इज वाई द मेन पोस्टुलेट उन्होंने ओवरकम कर दिया कि मेरा सबसे बेस्ट है. ओके, नाउ क्वेश्चन टाइम. इफ एन इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम लोअर एनर्जी शेल टू हायर तो क्या होगा? सो वी नो देयर इज KLMN. तो अगर ये लोअर एनर्जी है, ये हाईएस्ट एनर्जी है, अगर लोअर एनर्जी से थोड़ी हायर एनर्जी पे जाएंगे तो क्या होगा? एनर्जी रिलीज होगी कि एब्जॉर्ब? सो द करेक्ट आंसर इज एब्जॉर्ब होगी. व्हेन कम से ज्यादा, ठीक है, कम लेवल से ज्यादा लेवल, इफ यू हैव लेस एनर्जी, चलो लेट्स से क्या है, अगर आप थक गए हो, यू हैव लेस एनर्जी, तो आप क्या करोगे? फूड लोगे कि फूड नहीं खाओगे? फूड खाओगे ना, कुछ खाना खाओगे, देन यूल गेट मोर एनर्जी, देन यूल गो टू द नेक्स्ट लेवल. सो वैसे याद रखो, the lower energy level it absorbs energy and goes to the next level. ठीक है, if an electron has to move from lower energy to higher it will absorb an energy. और opposite क्या हुआ? अगर higher to lower तो क्या होगा? higher to lower फिर आप एनर्जी रिलीज करोगे, एनर्जी रिलीज हुई तो आप वापस आ जाओगे अपने लोअर लेवल पे. ओके, so in the next postulate was the change in energy of an electron will take place when
ओनली व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज मूविंग फ्रॉम वन एनर्जी शेल टू अदर। के से एल में गया, एम से एल में आया, तभी ही इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी चेंज होगी और वो एटम अनस्टेबल हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट नथिंग विल हैपन। ओके, सो एनर्जी एब्जॉर्ब और एनर्जी गिवन आउट होती है। So here you can see one quick screenshot you can take of this. सारे जो postulated थे that is written of Bohr's atomic model. So with this हमने complete कर दिया है कि in half an hour we completed about क्या है पूरा model, what was this and that. Okay, सब हो गया cover. Now let's move towards shells. जो बोहर ने हमको बताया था कि कुछ शेल्स होते हैं, ये होता है, वो होता है. So we have to study about them now. Okay, we have to study about them. So let's study. Now, शेल्स क्या होते हैं? एक न्यूक्लियस जैसे उन्होंने बोला, फिर के एलिमेंट, वो शेल्स बोलते हैं उनको, एनर्जी लेवल शेल्स, यू कैन से एनीथिंग. ठीक है, सो with help of that we can write the electronic configuration of an substance. ठीक है, कोई भी एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन हम लिख सकते हैं बाय द शेल्स. सो कैसे हम फाइंड करें? एक इलेक्ट्रॉन्स, एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स, फिर इनफाइनाइट तो नहीं होंगे, कुछ स्पेसिफिक नंबर होगा. सो वी फाइंड दैट बाय द फॉर्मूला 2n². 2n² से वी कैन फाइंड आउट कि एक शेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स होंगे. हाउ? के एल एम एन. ठीक है, के एन की वैल्यू 1, L2, M3, N4. सो पुट द वैल्यू 2 into 1². 2 into 1² कितना हुआ? 2. सो के शेल में ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल शेल में 8, एम शेल में 18, एन शेल में 32. सो यू कैन रिमेम्बर लाइक 2, 8, 18, 32, 2, 8, 18, 32. ऐसे याद रखो के एल एम एन में कितने दिस इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. इतने इलेक्ट्रॉन्स ही हो सकते, उससे ज्यादा नहीं. ओके, सो कोई भी सब्सटेंस में पहला वाला, इमेजिन कि 4 फ्लोर्स है, के फ्लोर, एल फ्लोर, एम फ्लोर एंड एन फ्लोर. ठीक है, के फ्लोर में बस 2 रूम्स है, 2 रूम्स फुल हो गए, तो फिर एल फ्लोर में जाओ जहां पे 8 रूम्स है, वो फिल हो गया पूरा. देन यू कैन गो टू एम शेल. ठीक है, एम फ्लोर में जाके जहाँ पे 18 रूम्स है, और अगर वो भी फिल हो गया तो लास्ट वाले फ्लोर पे चले जाओ 32 में. ठीक है, एन फ्लोर पे चले जाओ जहाँ पे 32 रूम्स है. ओवर. ठीक है, सो दैट इज हाउ यू डू. अब ये देखो, दिस इज नाइट्रोजन एलिमेंट. अब नाइट्रोजन का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एटॉमिक नंबर 7 है. ओके, एटॉमिक नंबर यू हैव टू रिमेंबर. फर्स्ट 20 एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर इज वेरी 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 नेसेसरी. ठीक है, कितने? फर्स्ट 20 का इट्स वेरी नेसेसरी. इट्स रिटन इन योर टेक्स्ट बुक. उन्होंने पूरा टेबल दिया वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स के सबके साथ. यू हैव टू रिमेंबर दैट. सो एटॉमिक नंबर है 7 नाइट्रोजन का. So how can I put it in the this thing? How can I put it in the what do you say, in shells and all? So let me take a blank slide and I'll show you. See this. How can we do is that पहले तो you have to draw one nucleus. एक nucleus बनाया. Then क्या है पहला वाला? 7. Okay, 7 लोग समझ लो, 7 इलेक्ट्रॉन्स है, 7 लोग समझ लो. पहले रूम में 2 लोग चले गए. ठीक है, तो कितने बचे? 5 और बचे. ठीक है, नेक्स्ट रूम में 8 रूम्स है. 8 रूम्स है मतलब में 5 उसमें से वी कैन टेक इट, राइट? सो हाउ मेनी मोर? 5 विल बी फुल ऑक्यूपाइड. सो दैट मीन्स आई मुझे बस 2 ही रूम की जरूरत है. हियर देयर विल बी 2 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2, एंड हियर विल बी 5, 1 2 3 4 and 5. So this becomes the electronic configuration of nitrogen. How will you write it? 2, 5. दूसरे भी मेथड होते हैं लिखने के, which you'll understand in your next in 11th grade. Okay, so that is how. अभी कितना था? 7 था. K शेल फुल हो गया. ठीक है, 2 रूम्स फुल हो गए. अभी 8 L शेल में तो 8 ही है ना, तो आउट ऑफ दैट वी कैन टेक 5 बचे हुए, है ना. सो 2, 5 becomes the electronic configuration. Now what were the rules? रूल्स क्या दिया उन्होंने? रूल्स थे कुछ कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज 8. ठीक है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे फॉर द वैलेंसी के लिए जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होंगे मैक्सिमम 8 होंगे. ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 8 होंगे, उससे ज्यादा नहीं हो सकते, क्योंकि ऑक्टेट रूल कंप्लीट करना है हमको. ऑक्टेट के लिए ओनली 8 आर रिक्वायर्ड.
Now, electrons are not accommodated in a given shell unless the inner shells are filled. ऐसा नहीं कि ये K shell, L shell, M shell है तो नहीं है K नहीं जाना, ठीक है पहले हम M ही चले जाते हैं, ऐसा नहीं कि लिफ्ट से सीधा M फ्लोर पे जाना, नहीं पहले K भरना है फिर L फिर M और फिर जरूरत पड़ी तो N. Okay, you cannot directly jump on higher. You have to first fill K, then L, then M, then N. Okay. Again, one more we have. Silicon. This is silicon. What is the atomic number? Atomic number है 14. अब 14 कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? 14 पहले चलो K शेल, L शेल, M शेल, ठीक है 3 शेल देते हैं. K शेल में तो 2 फिल हो गए पूरे पूरे, तो कितने बचे अभी हमारे बच्चे हैं 12 बच्चे, ठीक है. नेक्स्ट में कितने और चले जाएंगे? 8 और चले जाएंगे, करेक्ट. 2 8 18 32 होता है राइट, 18. तो अभी कितने हो गए हमारे पास? 8 + 2 14, सॉरी 10 हो गए और 4 बचे. इन द एम शेल हम चढ़ा उस एम फ्लोर पे, तो 18 लोगों की जगह 18 इलेक्ट्रॉन्स आई कैन पुट देयर, सो आई पुट 4 ओवर देयर. So what is the electron configuration? 2, 8, 4. Can you see? 1 2, then 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4. So that is how you write the electronic configuration. Here you see ये क्रिप्टॉन, आर्गन, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑल ऑफ दिस सारे एलिमेंट्स का यू कैन सी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. सारे नहीं मतलब कुछ एलिमेंट्स का, देन यू कैन राइट इट एज पर अकॉर्डिंगली आप लिख सकते हो कि हाउ इज इट. ओके फाइन, ऑलराइट. So with this you have completed. Now moving to the next topic, that is valency. Valency, very very important. Now valency क्या होती है? Before that, what is valence electrons? अभी I taught you that outermost shell में मैक्सिमम 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं. वाई? क्योंकि उनको ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है, करेक्ट, ऑक्टेट. सो जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स है, ओके, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स है, दोज इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. और एन शेल में, सबसे लास्ट शेल में, उनको हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. ओके, नाउ क्यों वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं? क्योंकि ये लास्ट वाले ही कंबाइन करते हैं दूसरे एटम्स के साथ और एक वैलेंसी प्रोड्यूस करते हैं. ओके, सो वैलेंसी इज नथिंग बट द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम विद अनदर एटम. एक एटम दूसरा एटम के साथ कैसे कंबाइन करता है? विद इलेक्ट्रॉन्स. दैट इज नोन एज वैलेंसी. ठीक है. सो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, इनर ऑर्बिट में कितने भी हो, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे ऑक्टेट रूल को सफाइस करने के लिए. Now, atoms, they get fully filled outermost shell with 8 electrons. N shell में तो हमने पढ़ा था 32 हो सकते हैं, राइट, 32 हो सकते हैं, पर उसमें से वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बस 8 होंगे. ओके, 8 होंगे तभी ही ऑक्टेट पूरा हो पाएगा. ओके, ऑलराइट. नाउ how should we find valency? Here you see valency 1 to 4. 1 to 4 आप कैसे ढूंढोगे? बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन. जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है उतनी वैलेंसी हो गई. लिथियम में एक ही है तो वैलेंसी 1, बेरिलियम 2, वैलेंसी 2. बोरॉन में कितने वैलेंस है? 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, सो वैलेंसी 3. कार्बन में हाउ मेनी आर देयर? 1 2 3 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सो वैलेंसी बिकम्स 4. बट 4 के बाद क्या? वैलेंसी आफ्टर 4 वी सब्ट्रैक्ट 8 फ्रॉम इट. क्योंकि 8 क्यों? क्योंकि ऑक्टेट के लिए. ऑलराइट. अब नाइट्रोजन में 1 2 3 4 5 है, तो आई विल डू 8 - 5, दैट इज 3. सो वैलेंसी हो गई 3. देन ऑक्सीजन में कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 है, तो अगेन 8 - 6, तो वैलेंसी हो गई 2. अब नियॉन का देखो, नियॉन का 8 ही है, पूरा 8 है, इजंट इट? पूरा 8 है नियॉन का. सो दैट मीन्स पूरा 8 है, 8 इलेक्ट्रॉन, सो पूरा ऑक्टेट अब कंप्लीट हो गया और 0 वैलेंसी हो गई उसकी. ठीक है. सो दैट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी. ओके, सो ऐसे यू फाइंड आउट द वैलेंसी ऑफ अ सब्सटेंस. ऑलराइट, नाउ लुक ओवर हियर. An atom is having valence electron 7. 7 इलेक्ट्रॉन्स उसके पास है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में. सो वैलेंसी 7 क्यों नहीं है? वैलेंसी 7 इट्स नॉट देयर. व्हाई? बिकॉज एटम एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, बट 7 लूज कर रहे
सो इट्स इजियर ना कि एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले उससे अच्छा, करेक्ट। सो 8 - 7 इज 1। ऑक्टेट ही कंप्लीट करना है ना, तो अगर 7 पूरे लूज कर ले इससे अच्छा इट विल जस्ट टेक 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन ले ले, ऑक्टेट हो गया। 8 - 7 करो 1, 1 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, दिस 1 इलेक्ट्रॉन इज माई वैलेंसी। ठीक है, वाई? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है, एक वैलेंसी क्यों है? बिकॉज एक गेन करेंगे तभी ऑक्टेट कंप्लीट होगा। ओके, सो दैट इज हाउ यू फाइंड द वैलेंसी ऑफ अ सब्सटेंस। अब second last topic of the day, atomic number and atomic mass। अब एटम में हमने पढ़ा रुदरफोर्ड, बोहर, उन्होंने बोला था कि इन एटम एक न्यूक्लियस होता है, करेक्ट, सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे जाते हैं फिर? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन द ऑर्बिट्स। ठीक है, ऑर्बिट्स में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो ऑर्बिट्स में हो गए इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। सो एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। जितने प्रोटॉन्स हैं आपके एटम में, न्यूक्लियस में, वो बन गया एटॉमिक नंबर। वी राइट इट बाय द अल्फाबेट जी। ओके, जी हम डिनोट करते हैं फॉर एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर इज टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम इज नोन एज द atomic number। okay, for example हम हीलियम क्या, okay wait, I'll teach you mass number also, then I'll explain you। see here, for example atomic number of C is 6। ठीक है, कार्बन का एटॉमिक नंबर इज 6। सो दैट मीन्स कितने प्रोटॉन्स हुए? 6 प्रोटॉन्स हुए इन द न्यूक्लियस, बिकॉज प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू द एटॉमिक नंबर। सो 6 प्रोटॉन्स, सो 6 इज द एटॉमिक नंबर। अब what is the mass of an atom? atomic mass क्या होता है? अब for finding atomic mass you have to do proton plus neutron। जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को ऐड कर लोगे then you will get your mass। atomic mass के लिए you have to add both proton also and neutron also, तब मिलेगा atomic mass। but if you want to find only atomic number, so वो होता है बस कितने प्रोटॉन्स है। हाउ डू यू राइट एन एलिमेंट? हम ऐसे H लिख देते हैं, C लिख देते हैं, बट एक्चुअल वे टू राइट इट इज दिस। X एलिमेंट है आपका, X एलिमेंट है, सबस्क्रिप्ट में you have to write the atomic mass, protons plus neutrons, correct, protons plus neutrons, वो you will write it in the subscript। okay, and in the in the superscript you have to write, sorry, A means the atomic mass, that you will write it in the superscript, and in the subscript you will write the atomic number Z। so mass, atomic mass is written as A, and atomic number is written by Z। look here an example, नाइट्रोजन को हम लिखते हैं 14 9n7। ओके, तो ये क्या है? फर्स्ट 14 क्या है? दैट इज द एटॉमिक मास। ओके, और 7 क्या है? एटॉमिक एटॉमिक नंबर। सो कितने प्रोटॉन्स है? इफ आई कैन आस्क यू, कितने प्रोटॉन्स है? देयर विल बी 7 प्रोटॉन्स, बिकॉज 7 इज द गिवन एटॉमिक नंबर। सो दैट इज हाउ यू राइट। अब लास्ट टॉपिक के पास जाते हैं, आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। इजी, ओके, आइसोटोप्स आइसोबार्स आर इजी। ये एक टाइप ऑफ स्पीसी होती है, एटॉमिक स्पीसी होती है आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। सो लेट्स अंडरस्टैंड दैट। पहला वाला आइसोटोप, the atoms of the same element but they have the same atomic number but different mass number। so listen, एलिमेंट, ओके, एलिमेंट जो है वो सेम है। ओके, द एलिमेंट इज सेम, बट एलिमेंट के कुछ आइसोटोप्स होते हैं, दैट मींस वो आइसोटोप्स के एटॉमिक नंबर सेम है बट मास नंबर डिफरेंट है। सो एटॉमिक नंबर से मतलब जो हम सबस्क्रिप्ट में लिखते हैं ना, बिलो, दैट इज सेम। सो फॉर क्लोरीन we have two isotopes of chlorine, one is chlorine 35, one is 37, but both of them have the same atomic number of 17,
दोनों के पास सेम एटॉमिक नंबर 17 है. Okay, so that is an isotope. So these two are the isotopes of chlorine. More examples, see here. Hydrogen. Hydrogen also have three species, three isotopes hydrogen has. First one, which has, it is written as 1H1. Same, one atomic atomic number है, that is known as protium. Okay, deuterium में है 1H2. Correct? No, it will be 2H1. Why 2H1? Because नीचे वाला same होना है. So 2H1. That is deuterium. Again, atomic number is 1. Tritium. Tritium 3H1. Okay. Now if you look over here carefully, 1, 1, 1. Atomic number same hai, isn't it? Atomic number is same. So what are they known as? They are known as isotopes. What are they known as? They are known as isotopes of hydrogen. If they ask you example, give three example of hydrogen isotopes: protium, deuterium, and tritium. Okay, these are the three isotopes. Similarly, for carbon also we have three isotopes: carbon 12, carbon 13, carbon 14, and all of them have the same same atomic number of 6. तीनों के पास same atomic number 6 है. Okay, similarly for lithium also we have 3 3 3 atomic number same. Okay, that is isotopes. अब बात करते हैं आइसोबार. आइसोबार क्या होता है? आइसोबार आर नथिंग बट एलिमेंट्स डिफरेंट है. ओके, एलिमेंट्स डिफरेंट है, एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट है, बट मास नंबर सेम है. जो ऊपर वाला है सुपरस्क्रिप्ट में जो लिखते हैं दैट इज सेम. आइसोटोप्स में क्या था? सेम एलिमेंट सेम मास नंबर, बट the atomic number, same atomic number and different mass number. That is isotope. Isobar में क्या होता है? एलिमेंट्स भी डिफरेंट है, एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट है, बट मास नंबर सेम है. फॉर एग्जांपल कैल्शियम एंड आर्गन, इन दोनों के एकदम अलग अलग है. करेक्ट, एकदम अलग एलिमेंट्स है. एक है कार्बन, एक है कार्बन नहीं, कैल्शियम. एक कैल्शियम है, दूसरा दैट इज आर्गन. तो फर्स्ट वन, इनके जो दिस इज मास नंबर है ऊपर 40 है, इसका भी 40 है, and below atomic number is 20 and 18. So this upper part is same. So these two are known as isobars. There are many iso, बहुत तरह के iso होते हैं, iso differs, isotones and all of this. Okay, तो एक एग्जांपल लिए है 40 Ca20, 40 Ar कैल्शियम और आर्गन का आइसोबार्स है, बिकॉज दे हैव द सेम मास नंबर. ठीक है, मास नंबर सेम है, बाकी सब डिफरेंट है. सिमिलरली वी इवन हैव फॉर सोडियम एंड मैग्नीशियम. सोडियम का जो मास नंबर है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों के 24 है, बट एटॉमिक नंबर देखो एक का 11 है, एक का 12 है. एलिमेंट्स देखो एक सोडियम एक मैग्नीशियम है, बट बस मास नंबर दोनों के सेम है. सो दैट इज माय isobar. If they ask you an exam to write for 5 mark, give difference between isotope and isobar, so you can write this. Okay, isotope same atomic number, isobar different atomic number. Isotopes a different mass number, but isobar same mass number. Number of proton same है, because mass number same है तो number of proton भी same हुआ. In isobar number of proton different है, because different atomic number, so different proton number. Now isotopes, अभी this is important and new point. पीरियोडिक टेबल में आइसोटोप सेम जगह पे आते हैं. व्हाई? बिकॉज उनका जो एटॉमिक नंबर है वो सेम है. दैट्स व्हाई दे अकर इन द सेम प्लेस एट पीरियोडिक टेबल. इन योर 10th you will study periodic classification of elements, you can check over there. ओके, एंड आइसोबार्स, आइसोबार का मतलब एलिमेंट ही डिफरेंट है, तो वी विल राइट इट इन डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस. ओके, सो यू कैन राइट एग्जांपल ऑफ आइसोटोप क्लोरीन, isobar you can write germanium and cerium. Okay, now one fact, did you know fact about isotone? There are many isos, I said you. One is isotone, isodiphers, all of these are there. So what is isotone? Isotone का मतलब होता है सेम न्यूट्रॉन्स बट प्रोटॉन्स अलग है.
neutron same but proton different. Now this is not in your exam, not an exam point of view, just an extra fact. ठीक है, one extra fact that isotones क्या होते हैं? Isotones are nothing but न्यूट्रॉन्स सेम है बट प्रोटॉन्स आर डिफरेंट. फॉर एग्जाम्पल बी एंड सी, करेक्ट, बोरॉन एंड कार्बन, उन दोनों का कुछ सेम नहीं है राइटिंग में, बट उनके 7 न्यूट्रॉन्स होते हैं और 7 न्यूट्रॉन्स होते हैं, और बट प्रोटॉन्स डिफरेंट है. प्रोटॉन डिफरेंट बट दोनों के ही सेम न्यूट्रॉन्स है. Okay, so that are known as isotones. Okay, so with this students, in 50 minutes we completed with the full chapter of structure of atom. हमने पूरा का पूरा chapter complete कर दिया है in one shot. What more videos you want? You want to start atoms and molecules, you want to start biology or physics, or you want me to bring up a video on the a structure of atom important questions? You can let me know in the comment section below. I'll be waiting for all your replies. So make sure to like this video, share with your friends, and subscribe to the channel right away if you did not do it till now. And I'll be seeing you very very soon with more exciting videos. Till then, take care everyone. Goodbye and take care.